Students, in today's video, we are going to discuss important concentration modes which are useful to measure concentration of solution. So in all the entrance exam, including JEE, NEET and CET, there are various types of problems based upon concentration modes. तो ये वाला कंटेंट जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगा. So these are the few concentration modes in front of you. जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिसमें हम लोग 3 अलग अलग मेथड डिस्कस करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 2 मेथड फॉर हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन. This is first concentration mode in front of you. What is that? Known to be molarity. अभी स्कूल लेवल से हमें 1-2-3 concentration term ऑलरेडी पता है. So what is that? First one known to be molarity. So what is molarity of solution? Molarity of solution nothing but number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. So यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है? Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. So how to calculate molarity of solution? WB into 1000 upon MB into volume of solution in ml. तो यहाँ पे WB वेट ऑफ सोल्यूट, MB होगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो यदि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कंसिडर करना है तो यही फॉर्मूला हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. WB into 1 या फिर WB अपॉन MB into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें कंसिडर करेंगे हम लोग? लीटर. ये होगा हमारा फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन मोड नोन टू बी मोलैरिटी. Let us shift towards next concentration mode that is known to be molality. अभी molality में स्टूडेंट चेक करो. Number of moles of solid again we are going to discuss, but instead of 1 liter of solution we are going to consider 1 kg of solvent. तो यहाँ पे number of moles of solid हमें consider करने किसमें? 1 kg solvent. So how to find out molality of solution? This molality of solution indicated as small letter WB into 1000 upon MB into WA. यहाँ पे भी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं WB upon MB into WA. यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग किस में कंसिडर करेंगे? किलोग्राम्स में कंसिडर करेंगे. ओके, ये होगा हमारा सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन मोड. लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स थर्ड वन that is known to be normality. So normality में हमें क्या कंसिडर करना है स्टूडेंट? Not number of mole, but we are going to focus on number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution. So we are going to focus gram equivalent of solute in 1 liter of the solution. And what about formula? WB into 1000 upon EB into volume of solution in ml. यहाँ पे भी हम लोग ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं. WB upon EB into volume of solution in liter. So instead of ml, we can make use of solution volume in liter. After that, next concentration mode we are going to focus, that is known to be mole fraction. So this is another important concentration mode student, known to be mole fraction. तो मोल फ्रैक्शन में हमें कौन सा सॉल्यूशन डिस्कस करना है? बाइनरी, जिसमें 2 कंपोनेंट हो गए. एक होगा सॉल्वेंट डिनोटेड ऑन पेपर बाय A, अनदर विल बी सोल्यूट डिनोटेड ऑन पेपर बाय लेटर B. सो इट इज नथिंग बट सिंपली रेशियो. कौन सा रेशियो हमें डिस्कस करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. So let us consider binary solution. Number of moles of solvent हम लोग कैसे find out करेंगे? Weight by molecular weight. Similar case for number of moles of solute WB upon MB. दोनों के मोल्स मिलने के बाद हम लोग आसानी से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन. Similar will be the case in case of mole fraction of solute. And remember student, for binary solution, total sum of mole fraction of solvent and solute always equal to unity. तो ये वाला important relation हमें frequently use करना है. After mole fraction, we are going to consider another important concentration mode, that is in the form of which one? परसेंटेज कंपोजिशन. तो परसेंटेज कंपोजिशन में हमें 3 अलग अलग मेथड डिस्कस करने. फर्स्ट वन नोन टू बी मास परसेंटेज, इट इज आल्सो नोन टू बी वेट बाय वेट मेथड. सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, W by W की जगह पे V by V यूज करेंगे.
and last one mass volume percentage denoted on paper by W by V. तो फर्स्ट केस में weight of solute upon total weight of solution into 100, second volume of solute upon total volume of solution into 100, and in third case weight of solute को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, total volume of solution into 100. So these are the three important concentration mode in terms of percentage composition. Let us shift towards another important method to measure concentration of solution, but this is strictly for what type of solution student? Very dilute solution. अभी very dilute solution का मतलब क्या है students? जब हम लोग consider करेंगे binary solution system, we are going to focus on these two. Number of moles of solvent highly greater than number of moles of solute. Then that kind of solution is known to be very dilute solution. अभी इस केस में हम लोग दोनों मेथड यूज करेंगे, कौन से? ppm parts per million, ppb parts per billion. So how to find out ppm concentration? Simply weight of solute divided by total weight of solution into 10 raised to 6. And what about ppb? Weight of solute upon total weight of solution into 10 raised to 9. So these are the two methods we are going to make use only for very dilute solution. Okay, shift towards next point. अभी इस कॉन्सेंट्रेशन मोड्स के अलावा कुछ एक बेसिक रिलेशन आपको पता होने जरूरी है, उसमें से फर्स्ट रिलेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट इज दैट? वेपर डेंसिटी. हाउ टू फाइंड आउट वेपर डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग रेफरेंस एलिमेंट बोल के कंसीडर करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम लोग वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरा, मोलर मास यदि आपको निकालना है, vapor density is given, so Vd into 2 that gives you molar mass. ये भी दो important steps है, keep in mind. इसके बाद next point हम लोग discuss करेंगे another important term known to be atomicity. So what is the atomicity of molecule? Water may be the number of atom present in one molecule of compound that gives you atomicity. And what about vapor density Vt? Just we consider densities of the gas and hydrogen under similar condition of temperature and pressure that gives you Vd. So इसके बाद next point हमें discuss करना है, that is known to be, क्या कैलकुलेट करना है हमें? रिएक्शन दिया होगा, प्रोडक्ट का क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे. कौन सा? Quantity of product formed during the course of reaction nothing but number of moles of limiting reagent multiplied by molar mass of product. तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन arises how to identify limiting reagent and excess reagent. तो आप सभी को पता है स्टूडेंट, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जो reagent totally consume होगा during course of reaction that become limiting, and which is not totally consumed during course of reaction that become what type of agent? Excess reagent. अभी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल हमें चेक करने, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, that act as what type of agent? Limiting reagent. अगला रिलेशन चेक करो स्टूडेंट्स. What is that? कुछ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन विच फैक्टर? नंबर ऑफ ग्राम एटम. यदि आपको एलिमेंट दिया है, उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम हमें निकालने, तो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? वेट ऑफ गिवन एलिमेंट इन ग्राम divided by atomic weight, that gives you number of gram atoms. After this, shift towards another important relation. What is that? How to find out number of millimole, how to find out number of milli equivalent. तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन यूज करेंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में कंसिडर करना है. एंड इफ instead of millimoles we are interested to find out number of milli equivalent, then weight upon equivalent weight into, again what we are going to write here? Volume of solution in ml. So these are the two important relation, how to get millimoles, how to get number of milli equivalent. Okay, shift towards next important relation. सो कॉन्सेंट्रेशन मोड्स के अलावा कुछ एक बेसिक रिलेशन आपको पता होने जरूरी. दिस प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन. उसमें से पहला रिलेशन आपके सामने कौन सा?
फॉर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको दिया है, उसका डाइल्यूशन हम लोग कैरिड आउट करेंगे, तो नए सॉल्यूशन के बारे में हमें मोलैरिटी पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन यूज करेंगे दिस वन, M1V1 इक्वल टू M2V2, या फिर नॉर्मेलिटी दिया होगा तो हम लोग सेम रिलेशन यूज करेंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2। आपको इनिशियल मोलैरिटी वॉल्यूम पता है, फाइनल मोलैरिटी या फिर फाइनल नॉर्मेलिटी हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस इज फॉर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट टू दिस डाइल्यूशन के बाद हमें अगला पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज नोन टू बी वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड। अभी XYZ ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको दिया है, जिसका यूज करके नया सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन करना है। तो हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड, तो वाटर का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे N1 माइनस N2 अपॉन N2 इंटू V1। तो यहाँ पे इनिशियल नॉर्मेलिटी पता है, फाइनल नॉर्मेलिटी पता है, इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग वाटर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला रिलेशन चेक करो स्टूडेंट, दिस इज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। So after dilution, two solutions we are going to mix, resulting mixture आपको मिलेगा, तो उसका मोलैरिटी या फिर नॉर्मेलिटी हमें निकालना है। तो उस केस में हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, M1V1 plus M2V2 gives rise to M3V3. So same relation we are going to make use for this one, N1V1 plus N2V2 gives rise to N3V3। ओके, तो यहाँ पे हमें मिक्सचर के ऊपर फोकस करना है। तो वॉटर में भी द V3 दैट विल बी एडिटिव वॉल्यूम, V1 प्लस V2 हम लोग ऐड करेंगे। सो आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट रिलेशन वी आर हैविंग फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन जानने के लिए हमें कौन सा कंसिडर करना है केस, दिस वन, चेक दिस, इफ NaVA ग्रेटर देन NbVb, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग फोकस करेंगे, A फॉर एसिड, B फॉर बेस। तो ऑब्वियसली हमारा सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो हम लोग आसानी से H+ फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा रिलेशन यूज करना है, NaVA माइनस NbVb, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम Va प्लस Vb। ओके, सो रिवर्स केस हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, फॉर बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, चेक दिस, इफ वी आर हैविंग दिस कंडीशन NaVA प्रोडक्ट लेस देन NbVb, देन ऑब्वियसली आपका सॉल्यूशन क्या होगा अंडर स्टडी, बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोक्सिल कॉन्सेंट्रेशन। हाउ, NbVb माइनस NaVA, इट इज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम Va प्लस Vb। तो हमें कौन सा कॉन्सेंट्रेशन मिला यहाँ पे, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो आफ्टर दिस अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन वी आर गोइंग टू यूज, वेट ऑफ सोल्यूट यदि हमें निकालना है, तो वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट कॉन्सेंट्रेशन मोड इज गिवन इन प्रॉब्लम। तो लेट अस टेक फर्स्ट वन, वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। यदि आपको मोलैरिटी प्रोवाइड किया होगा तो मोलैरिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट। यदि मोलैरिटी की जगह पे हमें नॉर्मेलिटी दिया होगा, देन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस रिलेशन, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। Okay, so these are again two important relation, how to get weight of solute present in given solution. So depending upon molarity या फिर normality. Okay.